Assalamu alaikum to all and everyone. It's me, Muhammad Ans from class 5th Purple. Today I will deliver a lecture on living organisms and their surroundings. Before going to topic, we will first discuss how life started or what is the origin of life. It's a complex mystery. It is a complex and fascinating mystery, but the scientists have proven that the life has started from non-living matter like carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid, etc. billions of years ago. ये जो इट इज़ ए कम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग मिस्ट्री, ये एक खास और सख्त राज था जानने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट्स ने प्रूव करके दिखाया कि जो ये लाइफ है ये नॉन लिविंग मैटर से बहुत पहले शुरू हुई है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से एटसेट्रा. So we can say the origin of life is abiogenetic. हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ है ये नॉन लिविंग मैटर से बना है. Inorganic molecules like carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid combine together to form organic molecules like RNA, ribonucleic acid, DNA, deoxyribonucleic acid and proteins. जो inorganic molecules होते हैं, ये जो inorganic molecules थे वो आपस में combine हो गए और उन्होंने जैसे proteins, lipids, nucleic acid ये combine हो गए और उन्होंने organic molecules बनाए, जैसे RNA, ribonucleic acid, DNA, deoxyribonucleic acid और proteins. Then these molecules became enclosed within the membranes forming the first cell. जो ये फिर molecules है जैसे RNA, DNA, ये फिर एक membrane से close हो गए और उन्होंने पहली cell बनाई. What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. जो ये सेल होती है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये मतलब ये स्ट्रक्चरल और ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. Earlier cells were much simpler called prokaryotic cells and modern cells are much complex called eukaryotic cells. जो पहले सेल्स थी वो बहुत ही सिंपलर थी और उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, और जो मॉडर्न सेल्स है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इनको यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है. नाउ आई विल टेल यू डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इन डिटेल. What is the prokaryotic cells are very small in size. यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये prokaryotic cells है ये बहुत ही छोटी है साइज में. जो the size of prokaryotic cells is 0.5 micron meters. जो ये prokaryotic cells होती हैं इनका साइज 0.5 micron meters होता है. The eukaryotic cells are large in size. The size of eukaryotic cell is 5 to 100 micron meters. यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो eukaryotic सेल है ये बहुत ही बड़ी है और इसका साइज 5 to 100 micron meters होता है. Nucleus and cell organelles are absent in prokaryotic cells. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें न न्यूक्लियस होता है और न इसमें न न्यूक्लियस होता है और न इसमें सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं. इन यूकैरियोटिक सेल्स सेल ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. जो ये यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है और सेल ऑर्गेनेलीज जैसे गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया ये इसमें प्रेजेंट है. DNA is naked, not bound by histone proteins. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसका जो है DNA नेकेड होता है. देखिए यहाँ पर ये नेकेड DNA है और ये किसी भी हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड नहीं किया गया होता है. The DNA is in eukaryotic cells. DNA is bounded by histone proteins which form together form chromatin. यहाँ पर जो है DNA है यहाँ पर जो है DNA है वो नेक नहीं होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन से बांध किया होता है और वो क्रोमैटिन बनाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रोमैटिन है.
as we already discussed, cell is the structural and functional unit of life. जब बहुत सारी सेल्स होती है वो टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या सेट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स. नाउ व्हाट इज टिश्यू? Now what is tissue? Tissue क्या होता है? Similar cells performing various function make an tissue. Example muscle tissue, nervous tissue, connective tissue, etc. जो ये tissue होता है ये cells से बना होता है. जब different किस्म की cells एक ही कोई function करे तो वो tissue बनाते हैं, जैसे connective tissue है, muscle tissue है, nervous tissue है, etc. Now what's organ? Tissues make up organ, and each organ in our body performs various functions, like heart pumps blood, the lungs help us in breathing, eyes help us to see, etc. ये टिश्यूज़ होते हैं वो एक ऑर्गन बनाते हैं और हर कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में डिफरेंट काम अंजाम देता है. जैसे हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है, लंग्स हमें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, जो ये हमारी आंखें हैं ये हमें देखने में मदद करते हैं. नाउ व्हाट्स ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन्स मेकअप ऑर्गन सिस्टम. जो ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द नेसेसरी फंक्शंस ऑफ लाइफ. जो ऑर्गन्स होते हैं ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एक साथ हमारी बॉडी की नेसेसरी फंक्शंस अंजाम देते हैं. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. ये नेसेसरी इसलिए क्योंकि क्योंकि जो एग्जाम्पल जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, या हमें रेस्पिरेशन में, और जो रेस्पिरेशन के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये नेसेसरी फंक्शंस ऑफ लाइफ अंजाम देता है. नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? द सेट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स मेक एन ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एक्सेट्रा. जो ऑर्गन सिस्टम्स का एक सेट होता है वो एक ऑर्गेनिज्म बनाता है. जैसे हम है, ह्यूमंस, एनिमल्स है, बर्ड्स है, एक्सेट्रा. Once life emerged, it began to evolve and adopt to different environments of life. जब एक बार लाइफ स्टार्ट होती है तो एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए अडॉप्ट होता है. जैसे डेजर्ट हैबिटेट में अगर डेजर्ट की जैसे केमल की बात करें तो जब केमल बहुत एडाप्टेशन लाता है अपनी बॉडी में जो इसको डेजर्ट में रहने के लिए मदद करते हैं. जैसे उसका हम फैट स्टोर करता है, उसके जो पैडेड फीट है वो उसको सैंड में अच्छी तरह वॉक करने में हेल्प करते हैं, एटसेट्रा. So the origin of life was a gradual process. ये एक आराम से स्लो मोशन प्रोसेस थी जो कि started with simple molecules and eventually leading to the diversity that we see today. ये simple molecules से स्टार्ट हुई थी और अब आज ये हम जो डाइवर्सिटी है अब उसी में तब्दील हुई है जो आज हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं अपनी लाइफ में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.